Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. क्योंकि मैं एक अकेला आदमी था जो उनसे लड़ सकता था पूरे घर में बिकॉज ही इज़ नॉट रियल विद एनी वन बीट मी बीट टीना बीट एनी वन ही इज़ नॉट रियल और वो धीरे धीरे आई थिंक आई रियली लाइक बिकॉज शी लुक्स वेरी मॉडर्न बट फ्रॉम इनसाइड शी इज़ वेरी देसी आई कॉल माई सेल्फ वेरी देसी सो आई थिंक दैट वाज द कनेक्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड जो नहीं होने चाहिए और जो अभी भी हैं जैसे कि सुम्बुल अंकित MC Stan even for that sake Nimrit also yeah Nimrit ka bhi there is no original thing it's she always look for a party group of people जो वो झगड़ा था रात को MC और शालीन के बीच में वो कल रात का झगड़ा नहीं था वो बहुत दिनों का बिल्डअप था कल रात को फटा क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं थी मैं वहीं खड़ा था MC गाली दे के गया द पर्सन हु प्लेड बिटवीन देम वाज टीना एंड शालीन इज प्योरली फेक रिलेशनशिप इट्स अ PR स्ट्रैटेजी आई थिंक दैट्स द माइंडसेट ऑफ अ इंडिविजुअल इससे आप उसका माइंडसेट देख सकते हैं कि किस लेवल पे है बिकॉज ही शोज इज शालीन भनॉट बट ही इज़ नथिंग यार वो इसलिए मेरे सामने चुप हो जाता था क्योंकि उसको पता था कि यही इंसान मेरी सच्चाई दिखा सकता है इसलिए वो चाहता था कि मैं घर से बाहर जाऊं इसलिए उसे जैसे ही मौका मिला नॉमिनेशन का तो उसने ही नॉमिनेटेड मी Actor Gautam Vig got evicted from the Big Boss 16 house this week. Let's hear what all he has to share. Firstly, Gautam, you had an amazing inning in the show and were coming across as a strong contestant. How shocking was this eviction for you and did you expect Salman to take your name? Yeah, of course. It was very shocking for me. I wasn't expecting because mostly people were expecting Tina or out of Saundarya, but my name came and yeah, it was. I'm still in a shock, but ठीक है, part of the game, so can't really complain. If you have to define your journey in the Big Boss house in 3 words, what will that be? My journey in 3 words: good, shocking, and expected. What do you think went wrong that the audience could not connect? I think the only thing went wrong was when me and Saundarya we were together and I think जो भी चीज़ें हुई हम दोनों के बीच में whatever the Karan sir said the things about me and Saundarya I think उसके बाद she became more overprotective because of that thing it just somewhere back me down little with others the connectivity with others क्योंकि उनकी अपनी इक्वेशन थी सबके साथ एंड आई गॉट अ डिफरेंट इक्वेशन विद एवरीवन एंड आई थिंक मैं कहीं ना कहीं उस वजह से दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाया और जब मैं कर भी पा रहा था तो शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी ओवर प्रोटेक्टिव बिकॉज व्हाटएवर हैपेंड she took that very seriously because I told her कि ठीक है हो गया ना यार why we have to justify people but of course सबका एक अपना mindset होता है चीज़ें होती हैं so वो कहीं ना कहीं मुझे little back down कर गई. Do you now regret your love angle with Saundarya? No, I don't. I to be honest, I don't regret it. The only thing I regret was कि people got expectation very quickly from us. I think अगर वो चीज़ें 4-5 वीक बाद अगर होती तो थिंग वुड हैव बीन पोर्ट्रेड इन अ डिफरेंट वे बट वो थोड़ी सी जल्दी एक्सपेक्टेशन होगी लोगों की हमसे जजमेंटल लोग थोड़ा जल्दी हो गए हम दोनों से आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग आई रिग्रेट आई एम स्टिल द सेम आई स्टिल नो हाउ टू टेक माई स्टैंड एंड आई कैन स्टिल फाइट विद 13 पीपल 13 कंटेस्टेंट अलोन दैट मच गट्स एंड करेज आई हैव जो कि मैंने दिखाई भी अपने कई डिसीजंस में बट बट रिग्रेटिंग इज Saundarya no I'm still in love with her and she still have that's why she was just keep crying last night when I was getting out of the house yeah. Gautam, from the past few weeks, your energy levels in the show seem to be dipping. Did Keju's comment demotivate you? Whatever Karan Johar said, it was very shocking for me because I never experienced that thing. And I think loving or caring for each other, it's a personal feeling. I think we don't really have to justify people. The only people who we have to justify is our families. I think हमने यही बात की थी. It took me some time to came out of it. But after that, as I mentioned, because of Saundarya's little overprotectiveness towards my decisions, to the decisions I'm gonna talk with, वो 2-3 बार हुआ भी है हमारे ऊपर हमारे बीच में कुछ चीज़ों को लेके झगड़ा whether it's Nimrit or Tina and whatever. Yeah, that's what my energy level was a little down because I was not able to think कि how should I make both the things fine back again? क्योंकि I didn't want to lose Saundarya plus I wanted to connect with everyone again. From last 1 week things were getting better with everyone. From last 3 days we started talking again, me, Nimrit, as same as before. But of course things takes time. 2-3 दिन पहले भी हमारी बात हुई मेरी और टीना और निमृत की बात हुई टीना hugged me 4 days back yeah so she hugged me and she's like I was like you know me Tina
and she hugged me back, and yeah, it was, see, feelings and emotions are always there. It's just a situation. उनकी अपनी complaints है, मेरी तरफ से अपनी complaints है, but I think you need time, you need to give each other time and to make things fine. तो I think अभी वो हो ही रहा था कि I got evicted, but I think थोड़ा सा वक्त और होता तो in next 3-4 days thing would have been way different and way better, yeah. When Charlene nominated you, he called you a kamzor aurat, which obviously did not go well with the women outside. Your take on Charlene's comment? शालीन के साथ मेरे रिलेशन स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे. आई थिंक वी मेट बिफोर बिग बॉस कपल ऑफ टाइम्स. जब मुझे पता लगा शालीन भनौट जा रहे हैं अंदर, तो हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे उनके बारे में कुछ चीज़ें बोली थी. एंड व्हेन वी वर इनसाइड वी वर रियली क्लोज. हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. बट व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग विद सौंदर्या, and like kind of it was very irritating for me. एक बार you give a benefit of doubt, दूसरी बार आप नहीं दोगे, और जबकि आपको पता है कि आपके दोस्त के मन में सामने वाले लड़की के लिए फीलिंग्स हैं, and you still pinching on the same thing. So from there the tiffs started, और वो कहीं ना कहीं चलती गई. एंड धीरे धीरे उनको मुझसे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि मैं एक अकेला आदमी था जो उनसे लड़ सकता था पूरे घर में, जिससे वो डरते भी थे. ये वो बच्चे भी आए थे 14 नवंबर के उसमें, तो उन्होंने भी यही पोर्ट्रेल दिया कि गौतम के सामने वो आता है और उसके बाद डाउन हो जाता है, झुक जाता है वो, क्योंकि और कोई आवाज़ उठाता नहीं था, क्योंकि सबको अच्छा बनने की थी. आई स्ट्रेट अवे टोल्ड हिम 3-4 टाइम्स, कम ना फेस टू फेस, लेट्स डू फेस टू फेस ना, यही चाहिए ना तुझे. तो बिकॉज आई कांट डू फेक थिंग्स यार. एंड तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें थी जो इफ़ेक्ट हुई हम दोनों के बीच में. Because he's not real with anyone, beat me, beat Tina, beat anyone. He's not real, and I think he thinks that this thing is working for him, good for him, but I can't change myself just for a game. शालीन और आप शुरुआत में काफ़ी अच्छे दोस्त नजर आए. आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज आपकी eviction की वजह भी कहीं ना कहीं वो बन गए? I think that's the mindset of an individual. इससे आप उसका mindset देख सकते हैं कि किस लेवल पे है. Because he shows he's Charlene Bhanot. बट ही इज़ नथिंग यार. आई मीन वो मुझसे बहुत बार सुना है उसने मुझसे, चाहे हंसी मजाक में सुना है, चाहे रियल में सुना है. मैंने बहुत बार उसको सच्चाई दिखाई है उसे, और वो इसलिए मेरे सामने चुप हो जाता था क्योंकि उसको पता था कि यही इंसान मेरी सच्चाई दिखा सकता है. इसलिए वो चाहता था कि मैं घर से बाहर जाऊं. इसलिए उसे जैसे ही मौका मिला नॉमिनेशन का, तो उसने ही नॉमिनेटेड मी. और मैंने कभी नहीं किया उसको नॉमिनेट कि कैप्टनसी. जब मैं पहली बार कैप्टन भी बना था, वट एवर ही डिड, सो आई स्पोक टू बिग बॉस. जब भी वो मारने वाला जो उसका सीन हुआ रचना के साथ, या बाकी चीज़ें भी हुई थी, आई डिडंट पर्सनली नॉमिनेटेड हिम, बट उन्होंने मुझे किया. एंड बिकॉज जिसमें डर होता है वही चाहता है कि दूसरा स्ट्रॉन्ग जो कंटेस्टेंट है वो बाहर चला जाए. क्योंकि मेरा मानना ये है कि स्ट्रॉन्ग उसको जाना चाहिए जो हु इज़ नॉट गिविंग बिजनेस टू बिग बॉस. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड जो नहीं होने चाहिए और जो अभी भी हैं, जैसे कि सुम्बुल, अंकित, MC स्टैन, जो अंदर हैं एंड दे आर डूइंग नथिंग. दे आर जस्ट देयर एज अ टेबल एंड चेयर. दे डोंट हैव एनी ओपिनियंस, दे डोंट हैव एनीथिंग. वो सिर्फ एक परछाई, एक शेडो की तरह घूम रहे. इवन फॉर दैट एक निमृत ऑल्सो यार. निमृत का भी देर इज़ नो original thing. She always look for a party, a group of people सपोर्ट के लिए, ताकि वो अपनी नॉमिनेशन से बच के, इनको लग रहा है कि कुछ और हफ्ते ऐसे बिता लेंगे, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि बाहर आपकी क्या इमेज बन रही है लोगों के सामने. बिकॉज दैट्स द रियल वर्ल्ड यू वांट टू लिव इन, राइट? नॉट इन द गेम. So yeah. Gautam, you and Saundarya were constantly questioned for your relationship by Kejo, host Salman, and then by the inmates. The audience seems pretty divided too. Would you like to clarify? यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्यार का इमोशन और जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत नेचुरल होती हैं. और वी बोथ मेट फर्स्ट टाइम एंड वी मेट ऑल्सो. हम दोनों के बीच में सिर्फ झगड़ा हुआ था पहले 2 दिन. हाँ, रिगार्डिंग अ वाटर बॉटल हम दोनों के बीच में वो झगड़ा रहा था. वो ऐसा था कि आप बड़े बाप की तो मैं भी बड़े बाप का हूँ. तो इट्स वाज लाइक दैट काइंड ऑफ अ टिफ बिटवीन बोथ ऑफ अस. बट आफ्टर दैट शी स्टार्टेड वर्किंग इन द किचन. वी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन एंड एवरीथिंग. और एक्चुअली मैंने और सौंदर्य ने सबसे पहली बार हमने जो अकेले बैठ के हमने जो बात की थी, आई थिंक दैट वाज इन द सेकेंड वीक व्हेन आई बिकेम कैप्टन. तो शी रियली सपोर्टेड मी इन कैप्टनसी में भी. बट हम दोनों ने कभी इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं की थी दोनों ने. और वो धीरे धीरे आई थिंक आई रियली लाइक, बिकॉज शी लुक्स वेरी मॉडर्न बट फ्रॉम इनसाइड शी इज़ वेरी देसी. and I call myself very desi, so I think that was the connect कि she's very caring, she's very emotional. तो वहाँ से कहीं से हमारी bonding start हुई धीरे धीरे. it was there were like 9 girls यार घर के अंदर.
और मुझे अगर रिलेशन ही करना होता तो मैं किसी और से, मैं टीना से कर लेता, मैं निम्र से कर लेता। देयर वर लॉट ऑफ गर्ल्स यार, लॉट ऑफ गुड लुकिंग गर्ल्स। वो एक जेन्युइन एक कनेक्ट मुझे उनके साथ लगा एंड मुझे लग रहा था कि ये एक ऐसी लड़की हैं जो कहीं ना कहीं मेरी जहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ूंगा शायद ये मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं वहाँ पे। इवन इफ़ यू सी दैट मैटर, जब मैंने कैप्टनसी में जब राशन सेक्रीफाइस किया था, शी वॉज द ओनली वन हु सपोर्टेड मी। एंड अगले दिन जब टास्क भी करना, शी वॉज द वन हु हैंडल द एंटायर किचन। So it was a very big thing for me, yaar, and I think I was somewhere right. My calculation was right कि she is the girl who can, you know, stand with me when I needed that person. So I think वो thought process के साथ मैं चला था। और justification क्यों देनी यार किसी को? I think हम दोनों जो एक दूसरे को जानते हैं वो हम जानते हैं, and we both are mature and smart enough कि हमें पता है कि क्या रियल है और क्या फेक है। और वो उनमें से है नहीं कि अगर मैं उनके साथ फेक करूँगा और वो मेरे साथ स्टैंड लेंगी या वो रहेंगी ना, उनको किसी चीज़ की कमी है ना मुझे। आई थिंक इट वॉज जस्ट अ प्रोसेस। हाँ, वो द ओनली बैड पार्ट वाज कि लोगों ने थोड़ा जल्दी जज कर लिया। आई थिंक इट वुड हैव बीन 4-5-6 वीक्स देन थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। बट क्योंकि और कोई मुद्दा ही नहीं था घर में, आई थिंक, तो इसलिए वो 3 वीक तक यही मुद्दा चलता रहा। बट इट बीन पोर्ट्रेड इन अ वेरी बैड वे because of the self-respect and the character assassinations and a lot of things. So yeah. Your ex-wife Richa Gera spoke about the same and also spoke about your game. She believes national television पर आपको conscious कर दिया गया and also that you and Saundarya are just attracted to each other. What are your views on this? I think she knows me since like what 20-25 years. Yeah, we were together since childhood. Like we were like friends, family friends and stuff. तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं और इसलिए शायद उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि ये फेक कर रहा है, ये कर रहा है, बिकॉज शी नोज मी इन एंड आउट। सही कह रही हैं वो कि आई शुड हैव, मैंने उनका आर्टिकल भी पढ़ा तो शी मेंशन कि आई शुड फोकस मोर ऑन द गेम। बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर आपके साथ कोई इंसान होता है और वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द थिंग्स, बिकॉज आफ्टर दैट शी वॉज वेरी कॉन्शियस। सौंदर्या वॉज मोर कॉन्शियस देन मी कि यार लोग क्या कहेंगे, कैमरा है, घर वाले, फैमिली देख रही है, एवरीथिंग ऑन एवरी एक्शन, कि अगर मैं कहीं पे गलत जा रहा हूँ या मैं निमृत टीना से वापस बात कर रहा हूँ तो शी वॉन्टेड मी टू बी करेक्ट इन दैट वे। बट दैट वॉज द ओनली थिंग। आई थिंक हमारे बीच में उस चीज़ों को लेके कई बार झगड़ा भी हुआ, बट आई थिंक दैट थिंग लिटिल यू नो जस्ट पुट मी लिटिल बैक। या Since you have witnessed MC and Charlene's fight firsthand, who do you think was wrong? जो वो झगड़ा था रात को MC और शालीन के बीच में, वो कल रात का झगड़ा नहीं था, वो बहुत दिनों का बिल्डअप था जो कल रात को फटा। क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं थी, मैं वहीं खड़ा था और MC गाली दे के गया। द पर्सन हु प्लेड बिटवीन देम वॉज टीना, क्योंकि टीना की जब भी शालीन से झगड़ा हुआ तो वो MC को कहीं ना कहीं कंधे के उस पर यूज़ कर रही थी। MC वहीं भरा हुआ था और वो शालीन पे निकला और शालीन ने उस पर निकाला, क्योंकि शालीन कहीं इनसिक्योर हो रहा था कि वो टीना के क्लोज जा रही थी, टीना उसके। और जब आप दोस्त बोलते हो तो आप इतना इनसिक्योर नहीं होते, मेरा मानना ये है। What are your views on Priyankit and Tina Charlene's love angle? रही बात अंकित और प्रियंका की, तो दे आर गोइंग हैंड इन हैंड। प्रियंका इज़ अ सेवियर फॉर अंकित। आई थिंक लास्ट 2 नॉमिनेशन बनी ही अंकित के लिए थी, चाहे वो गुलाब वाली हो चाहे वो ये वाली हो। बट ठीक है, शी इज़, क्योंकि प्रियंका को ये पता है कि कहीं ना कहीं अंकित चला गया तो उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि उनकी किसी से बनी नहीं है घर में। एंड इसलिए शी इज़ हैविंग अ बैकअप विथ हर, जितना वो सेव कर सके अंकित को। और टीना एंड शालीन इज़ प्योरली फेक रिलेशनशिप, इट्स अ PR स्ट्रैटेजी। एंड वो बात आपको बाहर आगे वैसे ही दिख जाएगी। वो सिर्फ कैमरा दिखावा चल रहा है कि अगर आप एक दिन इतना लड़ते हो, इतना कुछ होता है, आप सेल्फ एविक्शन मांग रहे हो और उसके बाद आप, सलमान सर ने आपको बोला 10 मिनट बाद अंदर गए और आपका हंसी मजाक चल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यार, लॉट ऑफ थिंग्स। और हर बंदा, हर वर्ग घर का बंदा यही बोलता है आफ्टर 50 डेज ऑल्सो कि इट्स ऑल फेक। Lastly, fans को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा यार, आपने बहुत प्यार दिया आज तक, आगे भी दीजिए और जस्ट कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड इंशाल्लाह I'll do some amazing work. Yeah, thank you. We hope that you guys enjoyed this chat with Gautam. If you did, do comment and tell us, and don't forget to subscribe to India Forums.